پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے مہنگائی کے خلاف نرسری سے شارع فیصل تک عوامی حقوق مارچ شہری قائدین کی طرف رواں دواں۔ صوبائی صدر فیصل ندیم کہتے ہیں کہ ملک میں ہر چیز مہنگی کر دی گئی، مارچ مہنگائی کے خلاف تحریک کا آغاز ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے میر کیریو سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے عوام حقوق مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ مارچ کراچی کے شارع فیصل سے رواں دواں ہے، جو کہ شارع قائدین پر اختتام پذیر ہوگا۔ مظاہرین میں سے ایک رہنما بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ اس مارچ کا مقصد کیا ہے، کہاں تک یہ اختتام پذیر ہوگا اور کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ دیکھیں، مارچ کا مقصد تو بالکل واضح ہے۔ اس وقت عوام کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ہر دوسرے روز بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، گیس کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اشیاء خرد و نوش اور دیگر چیزیں خود بخود ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مائیں اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں۔ تو اس کیفیت میں انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے ظالم و جابر حکمران ہیں، ان تک اپنی آواز پہنچائی جائے۔ تو یہ آواز پہنچانے کے لیے آج ہم سڑک پر ہیں۔ آج ہم اپنی موومنٹ، اپنی تحریک اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں کا شارع فیصل سے اس کا آغاز کیا ہے، شارع قائدین تک جائیں گے، وہاں جا کر دھرنے پر بیٹھیں گے، اور اس کے بعد یہ تحریک جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو پورے ملک میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ تحریک اس وقت تک چلتی رہے گی، یہ تحریک اس وقت تک چلتی رہے گی کہ جب تک یہ حکمران اپنے ظلم سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ اگر انہوں نے ظلم سے ہاتھ نہیں کھینچا تو یہ کرسی انشاءاللہ ہم ان کے وجود کے نیچے سے کھینچیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، آپ نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما کی بات اسی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ابھی احتجاجی ریلی جاری ہے جو کہ شارع قائدین پر پہنچ کر دھرنے میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں یہ عوامی حقوق مارچ ہے، بجلی مہنگی، پانی مہنگی اور آٹا مہنگا، دال مہنگی، پاکستان میں جو بھی چیزیں مہنگی کی گئی ہیں اس کے خلاف یہ عوامی دھرنا ہے، عوامی احتجاج ہے جو کہ شارع قائدین پر اختتام پذیر ہوگا۔ جی چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں جاری انسداد پولیو مہم سے متعلق مجموعی پیش رفت اور چیلنجز کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز فیلڈ اور یونین کونسل کی سطح پر اسٹاف کے ساتھ مل کر پولیو کے فرنٹ لائن ورکرز کی مؤثر طریقے سے مدد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے میر کیریو سے۔ میر بتائیے گا۔ جی بالکل، ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی طرف سے پولیو کے خاتمے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت چیف سیکریٹری سید آصف حیدر شاہ نے کی۔ اجلاس میں پولیو کی تمام تر جو ہے اقدامات کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا گیا، آنے والی جو مہم ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پولیو مہم میں یہ بھی اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈپٹی کمشنر اور جو یونین کونسل کی سطح پر پولیو مہم کو تیز کرنے کی جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں، اور ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی تمام جو اسٹاف ہے اور پولیو ورکرز ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی ان کو بھی سراہا گیا، ان کو بھی خراج تحسین پیش کی گئی۔ چیف سیکریٹری نے تمام تر ڈپٹی کمشنر اور تمام تر یونین کونسل کے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ مل کر اس پولیو مہم کو جو ہے مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران چیف سیکریٹری کا مہم کی کامیابی کو یقین بنانے میں ڈویژنل اور ضلعی قیادت کی اہم کردار پر بھی زور دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر بچے کو ان کے دروازے پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے پولیو ٹیم کی ہر ممکن طور پر مدد کی جائے۔ جی بہت شکریہ میر کیریو۔ ٹریفک پولیس کی پریشر ہارن اور فینسی نمبر پلیٹ کے خلاف خصوصی مہم۔ ٹریفک پولیس نے گاڑیوں سے پریشر ہارن اتار کر جرمانے عائد کیے۔ ماہرین کے مطابق پریشر ہارن شور شرابے اور ذہنی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جاوید قائم خانی سے، جی بتائیے گا۔ بالکل جی، کراچی جو ہے وہ اگر پالوشن کی بات کی جائے ویسے ہی جو ہے وہ ہر قسم کی پالوشن سے اٹا ہوا ہے، لیکن اگر ہم ایک بات کی کریں ایک گمبھیر مسئلے کی، وہ ہے ایک نوائز پالوشن، جس کا جو ہے وہ ایک دورانیہ کئی عرصے سے جاری ہے، لیکن اس کے خلاف کمپینز بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ جو ہے وہ نوائز پالوشن سے اب لوگ جو ہے وہ بہرے پن کا اور مختلف بیماریوں کا جو شکار ہو رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ماہرین کا، جس کے خلاف گائے پہ گائے جو ہے وہ مہم کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم سمت چورنگی میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ
यही इसी कैंपेन का हिस्सा करते हुए गाड़ी के खुले चलानी अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जब बताएगा ये आपने क्यों उतारा, इसलिए कि मुझे ये क्या प्रेशर हॉर्न? सर ये बिल्कुल प्रेशर हॉर्न है और डीआई साहब का आर्डर है कि किसी भी मतलब है कि गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगा हो उसके खिलाफ आपने मतलब है कि सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करनी है। मैंने इसका प्रेशर हॉर्न खोला और इसको मैंने जो प्रेशर हॉर्न का चालान जुर्माना बनता था वो मैंने इसको दे दिया, टिकट इशू कर दिया है और इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी कि जितनी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं उनको मतलब हम रिमूव करवाएं और उनको चालान दें। बिल्कुल जी, अस्पताल हो या स्कूल हो या रिहायशी इलाके हो या कभी किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाएं, इस नॉइज़ पोल्यूशन से परेशान दिखाई देंगे। मुहिम जारी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर से नॉइज़ पोल्यूशन के खात्मे के लिए गाय बगाए जो मुहिम की जा रही है उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके शहरियों को जो है वो कम से कम कुछ हिस्सा शामिल किया जाए और नॉइज़ पोल्यूशन से छुटकारा दिलाया जाए। जी, लांडी में फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी। हमले की सीसीटीवी सिटी 21 को मौसूल। तिलमुंद मुलजमान ने चलती मोटरसाइकिल पर एहलकार अदनान पर गोलियां बरसाई। जख्मी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज है। एसएसपी मलिक का कहना था कि वाकया ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और, हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। जो है वो हमारा एक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है और न्यूली वो रिक्रूटेड एहलकार है और वो अपनी ड्यूटी से वापस जा रहा था और 3 मुसल्लह मुलजमान ने जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने जो है वो उसको फायरिंग का निशाना बनाया है और इस वक्त हमारी सारी टीम्स मौके पे मौजूद हैं और इमीडिएटली यकीनी तौर पे जो है वो अदनान को हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए और मेडिकल एड के लिए पहुंचाया गया है और उसके बाद टीम्स हमारी काम कर रही हैं। क्राइम सीन यूनिट अपना काम कर रहा है और मौके से जो भी शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और दीगर जो मालूमात है वो भी हम ले रहे हैं और इंशाल्लाह इस केस पे काम करेंगे और जो भी मुल्ज़िमान हैं इस केस के जिन्होंने ये वाक़या किया है उनको जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। देखें अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, ठीक है, और तमाम जावियों से जो है वो हम इसका जायज़ा ले रहे हैं और अगर ज़ाती होगा तो भी सामने आ जाएगा और अगर कोई दीगर वजह होगी वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन अभी इस वक्त वो इंतहाई कबल वक्त होगा कि इस तफ्तीश के आगाज़ में ही इस तरह की कोई स्पेकुलेशन कर दी जाए। लेकिन तमाम जावियों से पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और क्राइम सीन से तफ्तीश स्टार्ट होती है, यहाँ से हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है फिर जैसे जैसे तफ्तीश का अमल आगे बढ़ेगा आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। जब गरीब को बिजली फ्री नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत फी यूनिट बिजली मुफ्त ना दे मगर रेट तो सही लगाए। मरकजी रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी का अलाउंत एहतजाज के शुरका से खिताब। मिफ्ता इस्माइल बोले कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ पटिशन दायर करने जा रहा हूँ। नेपरा ओवर बिलिंग का नोटिस ले कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग बंद करे। हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। 2015 से लेकर आज तक बिजली की कीमत में 350% का इजाफा हुआ। आवाम कह रही है शर्म करो, हाया करो, बिजली के बिल कम करो। तो मैं पिटीशन दे रहा हूँ, एक हुकूमत पाकिस्तान को पिटीशन दूंगा। मुस्लिम लीग ने 200 यूनिट फ्री कहा था, पीपल्स पार्टी ने 200 नहीं कहा था, 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ। टैक्स तो उस पे ना लो, उस पे टैक्स तो ना लो, रेट तो सही लगाओ, ओवर बिलिंग तो ना करो। मुतालबा करता हूं नेपरा से, मैं मुतालबा करता हूं पावर मिनिस्ट्री से और मैं मुतालबा करता हूं के इलेक्ट्रिक से, ओवर बिलिंग बंद करो। 2015 से आज के रेट में 350% इजाफा हुआ है। अवाम इंतशार नहीं करते, अवाम मारामारी नहीं करते जब तक कि लीडर उनको इस चीज की तरबियत नहीं देते। हम आपको ये तरबियत नहीं देते। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से 31 किलोमीटर तवील गैस ट्रांसमिशन लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया। ताहम गैस की बहाली का अमल मुकर्ररा वक्त पर ही शुरू किया जाएगा। गैस के तातुल के बायस होटलों पर रश बढ़ गया। शहरी नाश्ता और खाना होटलों से लाने पर मजबूर हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। सुरजानी के मुकाम पर सुई सदरन गैस की नई पाइपलाइन का पुरानी लाइन से मुंसलिक करने का काम मुकम्मल। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने का काम का आगाज सुबह 5 बजे शुरू हुआ, जिसमें SSGC के तमाम मुताल्लिका शोबों से ताल्लुक रखने वाली टीमें, इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ समेत मेहनत कशों ने हिस्सा लिया। साइट पर काम के इंचार्ज फारूक शेख ने बताया कि सुई सदरन की जगह पर गैस पाइपलाइन का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया है। ये तो काफ़ी महीनों से जो है ना पाइपलाइन वगैरह का काम जो है ना ऑपरेट था और इन प्रोग्रेस था। लाइन कंप्लीट हो गई है। अभी हुकअप करने के लिए यानी जो पुरानी लाइन है उनके साथ मिलाने के लिए सिस्टम के साथ जो है ना वो अभी काम जो है ना इस वक्त चल रहा है।
जब आज कमीशन है तो यानी कि 100% कंप्लीट है ना। जो लो प्रेशर की कंप्लेंट्स थी ऑलमोस्ट जो है ना डोमेस्टिक में या कमर्शियल में या इंडस्ट्री में, वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। सुई सदर्न गैस कंपनी के तरक्याती काम के बायस सनती और रहायशी इलाकों में गैस की फरहमी पीर की सुबह 5 बजे तक 72 घंटों के लिए बंद की गई है, जो शहरियों के लिए इम्तहान बन गई, जिसके बायस शहरियों ने खाने पीने की अशिया की खरीदारी के लिए होटलों का रुख कर लिया। जिस घर में क्या कहते हैं खाने को नहीं है, वो बेचारा 25 रुपए की रोटी 20 रुपए की रोटी कैसे खरीदेगा? किसी के घर में 10 आदमी है तो वो क्या कहते हैं 400 रुपए की रोटियां ले लेगा, वो तो मर जाएगा, वैसे ही मर रहा है। कल खुद बिल भरकर आया हूँ, 7,000 रुपये गैस का बिल भेजा, जो 2,000 का आता था, 1500 का आता था। इतनी महंगी कर दी है गैस, गरीब आदमी तो मर गया बिल्कुल। परेशान भी रहे, खाना भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं, रोटी भी नहीं पका सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये अच्छी बात थोड़ी है कि खाने से क्या भूखे प्यासे जाएंगे? बताओ, हमने तो ना लकड़ियाँ ली है ना कुछ लिया है। 48 घंटों की हमने बर्दाश्त की है, 32 घंटे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है भाई। ये आप देख रहे हैं गेले ने पानी, ये पानी भी नहीं है यहाँ पे, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। गैस तो वैसे भी नहीं आती, ये और मुसीबत आ गई। और बिल भी इतने आ रहे हैं, पहले 500 रुपये बिल आता था गैस का, अब कितना आ रहा है? 1700 रुपये। मैं खुद भर के आया हूँ अभी। सुई सदर्न हुकाम के मुताबिक गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया है, ताहम कुछ ज़रूरी आजमाइशी मराहिल मुकम्मल करने के बाद दिए गए वक्त के मुताबिक पीर के सुबह 5 बजे से गैस की बहाली का आगाज़ कर दिया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। औरंगी टाउन में गैस सिलेंडर धमाके में 11 अफराद जख्मी हुए। हादसा सिलेंडर फटने के बायस पेश आया, जिसमें झुलस कर जख्मी होने वालों की तादाद 7 है, जबकि दीवार का मलबा गिरने से पड़ोसी के 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को अब्बासी शहीद और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि झुलसने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। सैयद दानियाल की रिपोर्ट देखें। कराची में गैस सिलेंडर फटने के वाकयात बढ़ने लगे। औरंगी टाउन 10 नंबर गौसिया मस्जिद के करीब घर में गैस सिलेंडर फटने से घर की दीवार गिर गई। हादसे में घर के मकीनों के अलावा पड़ोसियों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। हादसे का शिकार होने वाले के रिश्तेदारों का कहना था कि इलाके में गैस नहीं आती, सिलेंडर भरवा कर लाए थे, जैसे ही माचिस जलाई सिलेंडर फट गया। सिलेंडर भरवा के लाए थे तो चाबी मतलब शायद सही से नहीं हुई, क्या फिट की है और उसने बस आग लगाई, जलाया चूल्हा और इतने में गए धमाका, फट गई सिलेंडर। इलाका मकीनों ने हादसे का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। कहते हैं जब गैस नहीं आएगी तो लोग सिलेंडर ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो वाक़या आज पेश आया ये सिलेंडर का था। इसमें जो है वो घर के 7 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें जो है 3 मर्द हैं, 1 बच्चा है और 3 जो हैं वो ख़वातीन हैं, जो कि शदीद जेलस भी गए हैं। और ये वाक़या जो हुआ ये सरासर हुकूमत ही की नाअहली है। जो गैस है हमारे पास वो आती नहीं है, जिसकी वजह से ये मजबूरी में लोग जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर धमाके में घर के 7 अफराद झुलस कर जख्मी हुए, जिनमें घर का सरबरा, 3 बेटे, 2 बहनोई और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि दीवार का मलबा गिरने से पड़ोसी खातून, उसका 4 साला बेटा और 2 नौमौलूद जुड़वा बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक झुलसने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करने पर गौर, पेट्रोलियम डीलर्स ने एहतजाज की धमकी दे दी। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान बोले, पेट्रोल महंगा होने से हुकूमत पर अवामी दबाव आता है। हुकूमत चालाकी से इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे रही है। हुकूमती इकदाम से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ओगरा के चेयरमैन से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात रखूँगा। मज़ीद जानेंगी काविश मेमन से। काविश बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो वफाकी हुकूमत को आवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। अब इसी हवाले से हुकूमत ये सोच विचार कर रही है कि ये इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे दिया जाए, लेकिन इस हवाले से जो डीलर्स हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान। अब उन्होंने सोचा है कि डीरेगुलेट कर दें। क्यों सोचा है? इसलिए किया कि अगर वो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट उनको कहेगी भैया आपने दी, कंपनियों को देना चाह रही है कि तुम बढ़ाओ, जो तभी चाहे करो, हमें इतने पैसे टैक्स देते रहो। मगर उससे जो बहुत बुरा असर पड़ेगा, स्मगल प्रोडक्ट आएगा, जो वो स्मगल प्रोडक्ट बेचेंगी, कम कीमत पे बेचेंगी। देखिए मैं जा रहा हूँ ओगरा के चेयरमैन से 30 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से मिलूँगा और उसमें हमें और भी बहुत मसाइल हैं और ख़ास तौर पे अभी ये नई चीज़ आ गई है तो हम इनसे उनको एहतजाज भी करेंगे
और उनके कह देंगे भाई आपकी जिम्मेदारी है, हम डीलर्स को एहतजाज करना चाहते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। अब्दुल समी खान मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि 30 जुलाई को वो ओगरा से भी मुलाकात करेंगे और हुकाम को इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार करेंगे। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर ये इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे दिया जाता है तो पेट्रोलियम जो कीमतें उनका इख्तियार भी उनके पास होगा। और साथ ही साथ जो हमेशा से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने कंसर्न का इजहार किया है कि जो स्मगलिंग है वो भी परवान चढ़ेगी और आवाम को इसका नुकसान होगा। जी, बढ़ती बेरोज़गारी में रोज़गार फराहम करने का आज़म। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर कहते हैं कि सिर्फ मुजाहरे नहीं, शहरियों को रोज़गार फराहम करना भी जिम्मेदारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम रोज़गार सहूलत प्रोग्राम का तीसरा मरहला शहरियों को आसान इकसात पर मोटरसाइकिल, सिलाई मशीनें, कैबिन, लैपटॉप और दीगर चीज़ें फराहम कर दी गईं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम कहते हैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि लोग राब्ता ना करते हों। जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा ना करे तो वो जिम्मेदारी मुआशरे पर आयद होती है। इंशाल्लाह लगी लिपटी नहीं, बहुत बड़े बड़े दावे नहीं। लैपटॉप हमने बाजार से लिया, बाजार से लेकर इसकी कीमत कितनी, 39,000 रुपए। हमने एक चीज का एहतमाम किया अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के लिए मैदान में खैर खाई करना चाहते हैं लोगों की। कोई भी दूसरा मकसद इस प्रोग्राम को चलाने का नहीं है। 39,000 रुपए का लैपटॉप है, 39,000 रुपए में बंदे को दे दिया है। फैसल नदीम कहते हैं शोर शराबा और एहतजाज हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ज़्यादा होने चाहिए। कुछ लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने 25 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी दी है। कैमरामैन शहरियार के साथ मीर केरियो, सिटी 21। मिल्क रिटेलर्स का दूध की पैदावार में कमी का दावा कमिश्नर कराची और वज़ीर आला को खत लिखकर आगाह कर दिया। तर्जुमान वहीद गद्दी का कहना है कि दूध की फराहमी यकीनी बनाई जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में दूध की किल्लत शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। मिल्क रिटेलर्स के तर्जुमान वहीद गद्दी का कहना है हीट स्ट्रोक से जानवरों की हलाकत के बाइस दूध की पैदावार 40% कम हो गई, जो दूध की किल्लत का बाइस बनने लगी। और लाखों जानवरों की दूध की पैदावारी सलाहियत में कमी, जिसके बाइस 40 से 45% दूध की पैदावार में कमी वाक़या हुई है। तो जाहिर है जब पीछे से सप्लाई नहीं होगी तो रिटेलर क्या फ़रोख्त करेगा। वहीद गद्दी बोले रिटेलर्स ओपन मार्केट से महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हो गया है, इंतज़ामिया मामले का नोटिस ले। तो जब वो सप्लाई नहीं मिल पाती है तो रिटेलर ओपन मार्केट से रुजू करता है। तो ओपन मार्केट में 300 प्लस में दूध इस वक्त अवेलेबल है, तो वो 300 प्लस का खरीद कर 220 रुपए का कैसे फरोख्त करे, ये आप ही हमें समझाइए। मिल्क रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची और वजीर आला को खत लिखकर सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर दिया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर के बासियों ने छुट्टी के रोज़ सुबह का नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए होटलों का रुख किया। शहरियों की बड़ी तादाद खुशगवार मौसम में नाश्ते का मज़ा उठाने के लिए बंस रोड फूड स्ट्रीट पहुंच गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। शहरियों ने संडे को फंडे बना दिया। कराची में नाश्ता पॉइंट्स पर आवाम के डेरे। बंस रोड फूड स्ट्रीट में शहरी हलवा पूरी से लुत्फानंदोज होते रहे। दुकानदार का कहना है कि फजर से ही नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। हलवा पूरी और लच्छेदार पराठे शहरी शौक से खाते हैं। हमारा फजर में नाश्ता शुरू हो जाता है और फजर से लेके ज़ोहर तक का टाइमिंग होता है। फैसिलिटीज़ यही है, बस अच्छी सर्विस कोशिश करते हैं लोगों को दे सकें, लोगों को अपना खुश करके इधर से भेजें, मुतमईन करके भेजें और जायका अच्छे से अच्छा दें। छुट्टी वाले रोज़ शहरियों की जानिब से बाहर नाश्ते की रिवायत ना सिर्फ बरकरार है बल्कि इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन हैदर अली के साथ आयमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं जिंगवानी शॉपिंग सेंटर की संग बुनियाद की तकरीब। एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज़ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में शुरका को DHA सिटी के सेक्टर 14 में बनने वाले नए प्रोजेक्ट के हवाले से आगाही भी दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लिए ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। जाकवानी शॉपिंग सेंटर की संग बुनियाद की तकरीब। सिटी एसोसिएट्स ने फैसिलिटेशन सेंटर में जाकवानी शॉपिंग सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। शॉपिंग सेंटर इलाके की तिजारती तरक्की में नए संग मेल अबूर करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए सिटी एसोसिएट्स के CEO मोहम्मद शफी जाकवानी ने मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा किया। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक नए कम्युनिटी ग्राउंड सेरेमनी अभी हम करके आए एग्जीबिशन सेक्टर 14 में हम जाकवानी शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। DHA सिटी में हम लोग उस वक्त से काम कर रहे हैं जब DHA सिटी
2009 में लॉन्च होने के बाद लॉटों की ट्रेडिंग हुआ करती थी और 2010 और 11 से हम लोगों ने इसमें काम शुरू किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज ने DHS में नए आने वाले प्रोजेक्ट्स की अहमियत और मकासद से आगाह किया। आप लोग जो मेरे पास प्रपोजल्स या सजेशंस लेके आएंगे उसमें जो बिजनेस और फाइनेंशियल मॉडल हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट कि मार्केट इस प्रोडक्ट को कैसे देखे, तो वो हम इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताई तकरीब से ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज के अलावा डेफेगिल एरिया के सदर जौहर इकबाल ने भी खिताब किया। इन्होंने मंसूबे के कम्युनिटी और मकामी मईशत पर असरात से मुताल्लिक आगाह किया। प्रोग्राम का अख्ताम कलीदी अफराद की खिदमत के एतराफ़ में शील्ड तकसीम करने की तकरीब के साथ हुआ। कैमरामैन राना के साथ ताहा मलिक, कराची। कराची की साहिल पर मछली का शिकार करने वालों की तादाद बढ़ने लगी। दो दरिया पर आगे शहरी फिशिंग रॉड के हमरा पहुंचे। शिकारी कहते हैं सुबह की पहली किरण के साथ मछली के शिकार का मजा ही दोबाला हो गया। सैयद दानियाल की रिपोर्ट देखें। मछली का शौकिया शिकार पूरी दुनिया में एक खेल का दर्जा रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसे एक लत समझा जाता है। कराची में मछली के शिकार के शौकीन अफराद रात गए साहिल का रुख करते हैं। ऐसा ही कुछ दो दरिया पर भी देखने को मिला, जहाँ दर्जनों की तादाद में शहरी फिशिंग रॉड और डोर के जरिए मछली का शिकार करते दिखाई दिए। कराची के साहिल पर एक शिकारी मछली लगने पर खुश दिखाई दिया। कहता है कि किस्मत हर वक्त मेहरबान नहीं होती, कभी कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। भाई ये भी तक 4 दाने मार लिए हम लोग ने। रात में तकरीबन हम 3 बजे के टाइम आए थे, कोई हमारा प्रोग्राम बना था, ये अचानक ही रात में तकरीबन 8-9 बजे के टाइम पे तो थोड़ा बहुत चारा लेके आए और फिर हम लोग बस आ गए थे। जहन जो है ना फ्रेश हो जाता है। हम लोग जब ज़्यादा बोर हो जाते हैं और मतलब काम वगैरह से थक जाते हैं तो अपने आप को सुकून के लिए, रिलैक्स होने के लिए हम इधर आ जाते हैं ताकि हम लोग सुकून मतलब हासिल कर सकें। जी हर सैटरडे आते हैं हम लोग और रात से नहीं, तकरीबन रात हम लोग रात से आ जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर हम 2 बजे के टाइम पे आते हैं क्योंकि शिकार का टाइम होता है वो। शिकारियों का मानना है कि फिशिंग के लिए हुनर के साथ साथ महारत की भी ज़रूरत होती है। मछली के शिकारियों का कहना है मछली का शिकार एक अच्छे मशगले के साथ साथ दिमागी सुकून के लिए भी एक अच्छी मशक है। सैयद दानियाल, सिटी 21, कराची। खबरदार, जिगर की बीमारी मौत की तरफ ले जा सकती है। हेपेटाइटिस से बचाव की आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अवाम में आगाही ना होने से हर साल बीमारी में इजाफा हो रहा है, जबकि अमवात की शरह भी बढ़ रही है। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। शेव करवाएं या फिर बाल कटवाएं या खून की मुंतकली हो, जरा सी बद एहतियाती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।